Now we are discussing the third topic of our discussion, that is what are the visual aids media. In previous discussion we have talked about different visuals कि हम visuals को अपनी presentation को improve करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी presentation को effective बनाने के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन जिस तरह हम different visuals को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से, जिस method से, that technique, that method, that ways are known as visual aids media. हम उनको visual aids media कहते हैं. तो visual aids can improve the quality and the impact of our oral presentation. Visual aid media means how to use different visuals for effective communication. So it means visual aids media means our method or ways to use different visuals to make our communication effective. That method, that ways are known as visual aids media. The topic number 4 is types of the visual aids media. We have the many types. Number 1 is computer-based presentation. Number 2, video lectures. Number 3, 35mm, 35mm slides. Number 4, overhead transparencies. Number 5, flip charts. Number 6, whiteboard. Number 7, handouts. Remember this point, students. Which visual aids media we have to use, it will depend on the different factors, and these factors are like size of audience, room size, presentation budget, and the time. Means out of these factors we have to see which one is suitable for us, which one is currently available to us, and according to these factors, according to these elements, we have to decide which visual aids media is important for the presentation. Remember this point. At a time you can use one visual aid media for your presentation. Even you can use more than one visual aid media at a time to make your oral presentation effective. तो एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं. तो इनमें से 7 out of these 7 the most important visual aids media are: number 1, computer based presentation, number 2 is handouts, and then whiteboard and the flip chart. तो rest of the जो methods हैं like number 2, number 3 and number 4, these are the old methods and nowadays we are using them. फिर भी यूज़ होते हैं लेकिन very rarely. Now move to the page number 7, and here we shall discuss the first visual aids media, that is computer based presentation. Computer based presentation can be real time or prepared in advance when they need to see immediate results. जब आपने immediate results देखने हो, आपके पास sufficient time हो to sit and to prepare the presentation material and everything, तो फिर आपके लिए सूटेबल जो मेथड होता है वो कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन ही होता है, जिसमें आपने रियल टाइम बिल्कुल एक अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशन आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, उसका रिज़ल्ट लेना हो, दूसरों को दिखानी हो. ठीक है, तो हमारे लिए बेस्ट और सूटेबल मेथड जो है वो यही बनता है फिर, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन. एंड इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस. नंबर 1, लास्ट मिनट चेंजेस आर पॉसिबल. आप एंड टाइम पे, एंड पे, एंड इवन सम टाइम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आपको थोड़ा सा टाइम मौका मिल जाए तो इवन यू कैन चेंज द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज, आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं. नंबर 2, स्पेशल इफेक्ट कैन बी एडिड. स्पेशल इफेक्ट्स लाइक एनिमेशंस, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं मज़ीद इसके अंदर. नंबर 3, प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लो. जब आपने कंप्यूटर, यू हैव परचेज अ कंप्यूटर, यू हैव परचेज अ प्रोजेक्टर, सब कुछ ख़रीद लिया, तो फिर इसके बाद एक ही दफ़ा खर्चा है, देन इट्स कॉस्ट इज़ वेरी लो. जस्ट यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू मेक द स्लाइड्स, यू हैव टू मेक द फाइल एंड यू हैव टू रन. नंबर 4, शेयर टू रिमोट लोकेशंस. तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो प्रेजेंटेशन होती है, एट अ टाइम इट कैन बी शेयर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस एज वेल एज रिमोट लोकेशंस पे भी इसको शेयर किया जा सकता है. जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस इज़ हैपनिंग हेयर इन वन रूम बट इट इज़ ब्रॉडकास्टिंग, इट इज़ शेयर्ड इवन इन अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज. नंबर 5, ऑडियो एंड वीडियो कैन बी एडिड. तो कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन में हमारे लिए दिस इज़ क्वाइट ईजी टू ऐड डिफरेंट ऑडियो इफेक्ट्स, डिफरेंट वीडियो क्लिप्स एट्सेट्रा. इट हैज़ डिसएडवांटेजेस एज वेल एज. नंबर 1, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव. ज़ाहिर है प्रोजेक्टर्स जो हैं आज भी नोवा डेज़ इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये सस्ते नहीं हैं. कंप्यूटर भी एक वेल जो है ना, एक अच्छी स्पीड वाला जो कंप्यूटर होता है, इन ईजी वर्ड्स यू कैन से दैट इज़ अप टू डेट और दैट इज़ द मॉडर्न डे कंप्यूटर, तो वो भी चीप नहीं है, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव. तो इस मेथड पे ख़र्चा ज़्यादा आता है. नंबर 2, कंप्यूटर एंड द ग्राफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड. आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए,
आपको ग्राफिक्स स्किल्स आनी चाहिए, डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, ग्राफिक्स बनाना, एनिमेशन बनाना, उसकी बैकग्राउंड सेट करना, तो काफ़ी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो यू कैन हायर समवन टू डू इट फॉर यू, तो ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। नंबर 3, presentation depend more upon the equipment than the presenter. Remember this point, this is very important drawback of computer based presentation, कि आपकी सारी प्रेजेंटेशन डिपेंड करती, जितनी मर्जी आप प्रिपरेशन कर लें, इट विल डिपेंड ऑन द डिवाइसेस, ऑन द इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाता है, वायर कनेक्ट नहीं हो रही, कंप्यूटर नहीं चल रहा, प्रोजेक्टर वर्क नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी एंड इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन टू द ऑडियंस। आप कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं ना, तो दैट्स वाई। नंबर 4, अ डार्क एंड रूम इज़ रिक्वायर्ड। आपको डार्क एंड एक तारीक कमरा चाहिए जिसमें ज़्यादा रोशनी ना हो, ताकि आप अच्छे रिजल्ट ले सकें ऑन द स्क्रीन। नंबर 2, वीडियो आर द वीडियो लेक्चर्स। ये एक ओल्ड मेथड भी है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, बट स्टिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड अदर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज दे आर आल्सो यूजिंग द वीडियो लेक्चर मेथड। Sometime as a presenter in your oral presentation you can also use video clips to convey, to send important information to the audience, तो ये आप पे भी डिपेंड कर रहा था। एंड इवन sometime you can record your presentation and then instead of coming in front of audience, तो आप उनके सामने अपनी वो रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग भी चला सकते हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी। तो ये इसे हम कहते हैं कि ये वीडियो आर द वीडियो लेक्चर्स। व्हेन यू नीड टू शो रियल लाइफ मोशंस, जब आपने रियल लाइफ मोशंस, पिक्चर्स नहीं, एक चलती फिरती पिक्चर्स, सारी सिचुएशन दिखानी होती है, तो इन योर प्रेजेंटेशन वीडियो इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम। तो फिर वीडियो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम है, फिर सबसे अच्छा जो विजुअल एड्स मीडिया है वो वीडियो ही है। इसके अपने बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, फुल कलर मोशन विद साउंड इज़ पॉसिबल। इसमें साउंड्स, कलर मोशन मुकम्मल शो की जा सकती है। डुप्लीकेटिंग प्रेजेंटेशन इज़ सिंपल, आप डुप्लीकेट कर सकते हैं आसानी से। एक फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे कंप्यूटर पे, तो उसी वक्त 2 फाइलें बन जाती हैं, जितनी मर्जी आप उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू इन कंप्यूटर ओनली। नंबर 3, प्रेजेंटेशन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंटर। इसमें प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटर रिक्वायर्ड ही नहीं होता, टीचर भी रिक्वायर्ड नहीं होता। वीडियो लेक्चर्स के लिए वीडियो रन हो जाती है, आप कंप्यूटर पे बैठ के, क्लास में बैठ के, प्रोजेक्टर पे चला के, जिस जैसे भी है चला के आप उसको देख सकते हैं। नंबर 4, स्मॉल केसेट्स आर ईजी टू स्टोर। केसेट्स वही होते हैं जैसे VCR के लिए, वो मेरा ख्याल है VHS केसेट्स इनको कहते हैं, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट कर सकते हैं मुझे इन केस ऑफ एनी मिस्टेक इन द नेम ऑफ दैट वीडियो केसेट। तो स्मॉल केसेट्स होती हैं, तो इनको आसान होता है बड़ा स्टोर करना, सेव करना। अब CDs हैं, फिर DVDs आ गई हैं, अब ये भी नहीं रही चीज़ें। फ्लैश ड्राइव्स वी आर यूजिंग, जैसे अब वो कहते हैं, क्या नाम है उसका, USB ड्राइव्स लाइक दैट, वो यूज़ हो रही हैं। तो दिस मेथड हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स। डिस्करेजेस ऑडियंस पार्टिसिपेशन। इसमें ऑडियंस की पार्टिसिपेशन डिस्करेज होती है। क्यों डिस्करेज होती है? ड्यू टू द डार्क रूम। अगर अंधेरा कमरा हो रहा है, कमरे में रोशनी ज़्यादा नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर एक ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब प्रेजेंटर है ही नहीं इसमें, देयर इज़ नो प्रेजेंटर इन दिस मेथड, तो टू whom वी हैव टू इंटरेक्ट। ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ नॉट विद द ऑडियंस, एक्चुअली प्रेजेंटर्स इंटरेक्शन शुड बी विद ऑडियंस एंड ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू डू विद प्रेजेंटर। जब प्रेजेंटर ही नहीं है वहाँ पे, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेक्शन। नंबर 2, प्रोफेशनल प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड। आपको प्रोडक्शन आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, डिवाइसेस हैं, उनका यूज़ आना चाहिए, फिर ही आप एडिट कर सकते हैं वीडियोज़ को, अच्छी वीडियो बना सकते हैं, इंप्रेसिव वीडियोज़, जैसा शादी की वीडियो वाले लोग करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हुए करते हैं, लाइक दैट। नंबर 3, प्रोडक्शन इज़ एक्सपेंसिव एंड द टाइम टेकिंग। तो ज़ाहिर है ये डिवाइसेस, मिक्सिंग डिवाइसेस, एडिटिंग डिवाइसेस, टूल्स, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज़ नॉट चीप और द लेस मीन्स के लेस कॉस्टली, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। तो इस पर ख़र्चा भी आता है, तो टाइम भी आता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, द थर्ड मेथड जो है दैट इज़ 35 mm स्लाइड्स। ये भी ओल्ड मेथड है, नाउ अ डेज़ वी आर नॉट यूजिंग इट, बट फिर भी इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये होती क्या थी। 35 mm स्लाइड्स प्रोवाइड क्रिस्प, कलरफुल, ईजी टू रीड फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये बच्चों जैसे आपने पुराने डिजिटल कैमराज आपने देखे होंगे, उससे पहले कुछ कैमराज होते थे जो ना रील के फॉर्म में, उसके अंदर क्रिस्पी रील एक होती थी, उसके अंदर वो प्लास्टिक की लंबी सी शीट, उसके ऊपर ना पार्ट्स बने होते थे स्लाइड्स की फॉर्म में ना, तो वो साइज़ डिफरेंट है। ये 35 mm स्लाइड थोड़ी सी बड़ी होती हैं और मोस्टली ये प्लास्टिक की या इस तरह कोई का ना फ्रेम भी होता है इसके गिर्द। तो वो हमारा वो पास वाला जो कैमरा था दैट वाज, जब हम उससे पिक्चर्स लेते थे तो फिर नेगेटिव्स बनते थे, नेगेटिव्स के बाद उसको फिर पिक्चर के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है प्रिंट लेने के लिए, ठीक है, दैट वाज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में होते थे, इसमें कलरफुल इमेज बनती थी उसके ऊपर, रील के ऊपर उसके
तो उसके बाद उससे इमेज को बड़ा करके दिखा लिया जाता सबको, ठीक है जी। कहता देर आल्सो यूज टू शो ग्राफिक्स पिक्चर्स टू द लार्ज और द स्मॉल ऑडियंस। तो ये लार्ज साइज़ की और स्मॉल साइज़ की ऑडियंस दोनों को दिखाने के लिए यूज़ होती थी 35 मिलीमीटर स्लाइड्स जो होती हैं, बिकॉज द प्रोजेक्टर्स आर स्मॉल एंड पोर्टेबल। क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्टर यूज़ होता था, प्रोजेक्टर क्या होता था, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता था, उसको वायर से कनेक्ट करके तो जनाब बात आगे स्लाइड रखनी, वो रोशनी से बड़ी सी इमेज बन जाती थी उसके आगे, फिर उसको चेंज कर दें, फिर दैट्स ऑल। तो पोर्टेबल भी था, उसको आसानी से मूव भी किया जा सकता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी ये है एग्जांपल आप लोगों के लिए कि एक ना टॉय होता है, टॉय जिसमें छोटा सा कैमरे की तरह का ना उसके अंदर एक गत्ते की एक रील होती है जिसकी फ्रेम होता है, उसके अंदर छोटी छोटी ना ये स्लाइड्स लगी होती थी डिफरेंट पिक्चर्स की। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट किड्स जो होते थे बच्चे छोटे, एक आँख के तरह से देखते थे, ऊपर से बटन प्रेस करते थे, वो दूसरी स्लाइड आ जाती थी। तो ये वही कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ पे वो छोटा इमेज होती है उसके अंदर, लेकिन इसको आप बड़ा इमेज किसी तरीके से बना देंगे तो वो ज़्यादा ऑडियंस के लिए यूज़ होता है, उसमें एक ही बंदा देख रहा होता है। नंबर इसके जो बेनिफिट्स हैं, कहता है इमेज आर हाई क्वालिटी, इसमें इमेज बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी की बनती है। नंबर 2 प्रेजेंटेशंस कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, इनको डुप्लीकेट आसानी से किया जाए, इसकी कॉपीज़ प्रिपेयर की जा सकती है। नंबर 3 प्रेजेंटर कैन मूव अराउंड द रूम, प्रेजेंटर रूम में मूव कर सकता है, ऑडियंस से इंटरेक्शन भी कर सकता है, क्योंकि डिवाइस एक जगह पड़ी होती, स्लाइड रन करेगा, रन करने के बाद ही विल मूव हेयर एंड देयर एंड ही विल एक्सप्लेन। तो उसके बाद फिर जब डिवाइस चेंज करनी होगी अगेन विल कम बैक टू द डिवाइस, प्रेस द बटन, मूव द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल एक्सप्लेन अगेन। उसके बाद लिमिटेशंस में इसमें देखें डार्क एंड रूम रिक्वायर्ड होता है, अंधेरा कमरा होगा ताकि इमेज रिजल्ट अच्छा शो हो सके। नंबर 2 डिस्करेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन, उसको डिस्करेज करती है, उसमें ऑडियंस इसमें इतनी एक्टिव होती है, सबकी तवज्जो जो है दैट इज़ टूवर्ड द पिक्चर, दैट इज़ टूवर्ड द 35 है इमेज ऑफ द 35 मिलीमीटर स्लाइड्स। प्रीव्यूइंग एंड एडिटिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ज़ाहिर जब आपने एक स्लाइड बनानी है तो स्लाइड बनाने से पहले आप उसको प्रीव्यू नहीं कर सकते, एक ही टाइम जब स्लाइड बन गई उसमें कोई गलती है तो या तो स्लाइड चेंज होगी, एडिट नहीं होगी, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम होती है, एट द लास्ट मोमेंट किसी किस्म की चेंज इसमें नहीं हो सकती, एज वी हैव डिस्कस इन कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। नंबर 4 जो है दैट इज़ ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक ओल्ड कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट बाद में रिप्लेस हुआ है विद कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। Remember this thing, 35 mm slides or overhead transparencies, both concepts have been replaced nowadays with computer based presentation. Remember this point students. So overhead projection is the most popular presentation medium used by the business today. आजकल नहीं है, I am clearing to you in the past like 10 20 years 20-30 years back तो ये यूज़ होता था, बस अब नहीं होता। मोस्टली वी आर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशंस, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये बिजनेस में डिफरेंट बिजनेस में प्रेजेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम था, नो डाउट इट वाज, ठीक है। तो हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंसीज कैन बी प्रिंटेड इन फुल कलर डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसमें होता क्या था कि हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंसीज जो है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, दैट इज़ अ पेज फ्रॉम विच वी कैन लाइट कैन पास ईजीली। आसान वर्ड्स में जैसे आपने बटर पेपर कभी देखा होगा ना, बटर पेपर ये मिलते हैं हमें इस फॉर्म में, A4 साइज़ में, लेटर साइज़ में, इस तरह ट्रांसपेरेंट पेपर होते हैं, उनके ऊपर आप प्रिंट ले लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट ले लें, कलर ले लें। तो आफ्टर दैट जस्ट वी आर पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ डिवाइस जिसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब सा लगा होता है, कोई मैकेनिकल होता है जो स्लाइड पेज को चेंज खुद ही करता जाता है बटन प्रेस करने से ना, तो वो इमेज फिर बड़ी सी कर देते हैं, जैसे 35 mm स्लाइड पे होता है ऐसा ही इस पर होता है। तो इसमें यह कि कलरफुल इमेजेस यूज़ हो जाती हैं इस पर भी, ठीक है। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, लाइक प्रेजेंटर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्रेजेंटेशन, का मुकम्मल कंट्रोल होता है, जहाँ मर्जी भी इसको स्टॉप कर सकता है, जहाँ मर्जी इसको रोक के मैक्सिमम टाइम दे के एक्सप्लेन कर सकता है। वेयर ही और शी विल लाइक टू मूव, तो फिर स्लाइड मूव भी कर सकती है, इमेज नहीं आ जाएगी, तो लाइक मुकम्मल उसका कंट्रोल होता है। नंबर 2 प्रेजेंटर फेसेस द ऑडियंस इन अ वेल लीट रूम, इसके लिए डार्क रूम रिक्वायर्ड नहीं होता, रोशनी होती है कमरे में, जब रोशनी होती है तो फिर ऑडियंस को भी नज़र आ रहा था हु इज़ द प्रेजेंटर, एंड इवन प्रेजेंटर कैन मेक मैक्सिमम इंटरेक्शन विद द ऑडियंस एज वेल एज। नंबर 3 विजुअल्स कैन ईजिली बी रीअरेंज और ओमिटेड, इसमें जो विजुअल यूज़ हो रहे थे, जो इमेजेस होते हैं उनको टाइम पे जब मर्जी इसको एडिट कर लें, नए ऐड कर दें, नया प्रिंट लेके नया पेज आगे रख दें उसके डिवाइस में, तो वो नई इमेज आ जाती है, लाइक दैट। It has its own limitations as well as number 1 it can be used for the group of up to 100 people। ये 100 लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ होता है, बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़, और यहाँ पे 100 जो है ना लोग भी ज़्यादा दे दिए गए हैं, फिर भी 30-40 लोगों के लिए एक रूम के अंदर बस इसको यूज़ किया जा सकता है।
नंबर 2, प्रेजेंटर मस्ट रिलाई ऑन इक्विपमेंट सेम लाइक कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी प्रेजेंटर जो है ना इक्विपमेंट पे अलाई कर रहा था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो जाए, प्रिंटर ख़राब हो जाए, कंप्यूटर ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होगी एंड यू विल नॉट इन पोजीशन टू डू इट बाय विद योर मेमोरी। नंबर 3, ओल्डर प्रोजेक्टर्स टेंड टू बी डिम एंड नॉइसी। इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्टर आपका पुराना है तो वो डिम भी हो सकता है, उसकी इमेज अच्छी नहीं हो सकती। दूसरा, वो नॉइस को शोर दे सकता है, उससे आवाज़ आ सकती है, दैट विल डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस एंड इवन इट कैन बी द काज टू लूज द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस एज वेल एज। इसमें ये भी इसके टेक्निकल ड्रॉबैक्स भी हैं। एंड देन विजुअल एड्स मीडिया नंबर 5, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फ्लिप चार्ट इन प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। यानी कि आज के दौर में जब कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन ही चलती हैं, द फ्लिप चार्ट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन मीडिया ऑफ ऑल। तो फिर भी फ्लिप चार्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा, बल्कि यहाँ पे तो ये मेंशन है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, द बेस्ट विजुअल्स हैव बीन एंड द स्टिल आर द सिंपलेस्ट। कहता है सबसे अच्छे जो विजुअल्स वहीं आज जो बिल्कुल सिंपल्स हैं, एक वर्ड लिखा है, एक इमेज लिखी है, अब दैट साल उसको एक्सप्लेन कर दे, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, लाइक दैट इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो फ्लिप चार्ट जो है एक सिंपलेस्ट मेथड है विजुअल एड्स मीडिया में, तो स्टिल इट इज़ यूज। रिमेंबर दिस थिंग, इसमें बिल्कुल ना एक लाइक अ पेंटर, वो एक स्टैंड होता है, जैसे उस पर कैनवस होता है, वहाँ पे कैनवस की जगह पे पेंट चार्ट्स लगे होते हैं बड़े बड़े। तो चार्ट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि चार्ट्स प्रिंट नहीं हो सकते, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, या तो प्रिंट पार्ट्स में प्रिंट लेके अटैच करते हैं उस पर इमेज बनाने के लिए कुछ भी, या आप हैंडशिप अपनी हैंड राइटिंग के साथ उसके ऊपर जो भी लिखना है मेंशन करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अब 35 mm स्लाइड्स यू आर मेकिंग, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज यू आर मेकिंग, उसी तरह बड़े चार्ट पे इन्फॉर्मेशन ले लें, ऑन चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 अरेंज कर दें, 1 को एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद उसको पीछे रोल कर दें, फिर 2 को कर दें, रोल बैक कर दें, 3 कर दें, टर्न ओवर कर दें, लाइक दैट, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। तो ये फ्लिप चार्ट का आइडिया ये छोटी ऑडियंस के लिए यूज़ होता है, फॉर टू गिव स्पॉन्टेनियस इन्फॉर्मेशन। फटाफट कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, जस्ट यू वांट टू शेयर इट विद द ग्रुप, विद अ स्मॉल ग्रुप, फ़ौरन मीटिंग कॉल करें, सारे बैठ जाएँ, स्टैंड रखें, फ्लिप चार्ट लगाएं और एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, दैट्स ऑल। इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस स्टूडेंट्स, इट्स यूजेज इज़ कम्फर्टेबल। इसका यूजेज बड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि ये मेथड बहुत ही सिंपल है, आसान है, इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम है। नंबर 2, फ्लिप चार्ट अलाउज स्पॉन्टेनिटी, इसमें आप स्पॉन्टेनियस इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आपके माइंड में भी गया वो भी शेयर कर सकते हैं, आप चार्ट चेंज करके नई इन्फॉर्मेशन भी उस पर ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट। नंबर 3, एनी लास्ट मिनट चेंज कैन बी ईजीली मेड। लास्ट देखिए चार्ट्स हैं तो किसी भी टाइम चार्ट को आप निकाल के नई इन्फॉर्मेशन लिख के नया चार्ट रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, ठीक है। तो लास्ट मिनट चेंज है वो, दैट इज़ पॉसिबल। इट हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस एज वेल एज इट इज़ यूज फॉर द ग्रुप ऑफ 35 पीपल ओनली। यानी कि स्मॉल ऑडियंस के लिए सिर्फ ये यूज़ हो सकता है। 35 यहाँ बहुत ज़्यादा मेंशन है, लेकिन 10 से 15 लोग भी काफ़ी हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। नंबर 2, प्रेजेंटर मस्ट हैव अ हाई एनर्जी। जो प्रेजेंटर है वो एनर्जेटिक होना चाहिए, वीक ना हो, एक्टिव बंदा हो, जो स्टैंड को उसको पूरे फ्लिप चार्ट को उठा के लेके भी आ सके, ठीक है। ये नहीं कि उसको 2 गार्ड चाहिए उसके लिए टू जस्ट पुल इट, तो उधर एक हैवी सी एक स्टैंड होता है ना। तो बस आज का नो डेज इट इज़ क्वाइट सिंपल, एलुमिनियम के स्टैंड्स आ गए हैं जो बिल्कुल सिंपल से आप आसानी से यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो नो नीड टू यूज़ मच एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल फ्लिप चार्ट। नंबर 3, हैंड रिटन फ्लिप चार्ट रिक्वायर्ड द गुड पेन मैनशिप। आपने अगर हाथ से लिख के लाने फ्लिप चार्ट के ऊपर जो चार्ट्स हैं उसके, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली आपने फिर एक अच्छे लिखारी आप में पेन मैनशिप हो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स आप अच्छी यूज़ कर सकते हो, आपको पता हो कि विच पॉइंट आई हैव टू यूज़ इन डिफरेंट कलर्स, वेयर आई हैव टू मेक द पॉइंट बोल्ड एटसेट्रा, सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। नंबर 4, प्रेपरेशन ऑफ द हैंड रिटन फ्लिप चार्ट इज़ लेबर इंटेंसिव। तो ये बड़ा एक मेहनत तलब काम है, ठीक है, थकाने वाला भी काम है। ये याद रहे जब आपने लिखना तो एक चार्ट तो आप लिख लेंगे, इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू। अगर आपको 20-25 लिखने पड़ेंगे तो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो अगेन फिर आप इंस्टेड ऑफ फ्लिप चार्ट यू विल प्रेफर टू यूज़ कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, कि आपको टाइप कर दिया तो ये तो ज़्यादा आसान काम है, डिज़ाइन चेंज कर ले कंप्यूटर में, बजाय कि आप 20 चार्ट्स को लिखें, फिर गलती हो, नया चार्ट बनाएं, एडिट करें, फिर नया बनाएं, लाइक दैट, तो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये मोस्टली होता है कि कंप्यूटर को ड्राइंग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनको चार्ट के फॉर्म में बनी, उनको लगाएं और लगा के 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दें, एज़ इट इज़ एक्सप्लेन बाय द डिफरेंट मिलिट्री पर्सोनल्स, जैसे वो करते हैं अपनी किसी प्रेजेंटेशन में, किसी मिशन के लिए, कोई डिस्कशन के लिए, प्रोजेक्ट की। तो नंबर 6 है वाइट बोर्ड। रिमेंबर दिस पॉइंट कि वाइट बोर्ड अलोन यूज़ जो होता है ना, दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड सम टाइम ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन यू आर यूजिंग वीडियो लेक्चर्स, यू आर यूजिंग वीडियो मेथड एंड इवन यू आर यूजिंग विजुअल एड मीडिया कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, एंड विद कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन यू आर आल्सो यूजिंग you are also using whiteboard to explain different points that are not mentioned in your computer based presentation that came at the time in your mind, तो फिर आप वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है।
कहता है यूजिंग वाइट बोर्ड एज योर प्राइमरी विजुअल एड इज़ कंसिडर्ड इनएडुकेट, इसे फॉर द मोस्ट बिजनेस सिचुएशंस, कहता है ज़्यादातर बिजनेस सिचुएशन में सिर्फ वाइट बोर्ड को यूज़ करना जो है ना दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, उसे अप्रोप्रिएट नहीं समझा जाता। एंड सो यू कैन लूज़ कंट्रोल ऑफ योर ऑडियंस व्हेन बिजी इन राइटिंग, इसमें क्यों नहीं किया जाता? नंबर वन कि अगर आप वाइट बोर्ड पे लिखने पे बिजी हैं तो यू कैन लूज़ द कंट्रोल ऑफ योर ऑडियंस जो है ना दे विल स्टार्ट टू मेक देम सेल्फ बिजी इन गॉसिप्स, तो वो बातें शुरू, उनका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है वाइल यू आर राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है क्योंकि आपका इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ नहीं रहता। इसके अपने बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन, आइडियल फॉर रिकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस इन्फॉर्मेशन, कोई सडन इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान आ गई है, आपने पॉइंट ऐड नहीं था कि आप वाइट बोर्ड पर लिख के भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सेपरेटली। नंबर टू, वन कैन एडिट इन्फॉर्मेशन ईजिली, जब मर्जी वाइट बोर्ड पर जितना भी लिखा है ईजिली आप एडिट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड इवन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन मेक अ लिंक विद अनदर पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव मेंशन ऑन अनदर कॉर्नर ऑफ द वाइट बोर्ड, तो उनको लिंक भी आप कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन में जो है ना कैन बी यूज़ फॉर द ग्रुप ऑफ अप टू 30 पीपल ओनली, 30 लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ हो सकता है ये वाइट बोर्ड। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपका एक्सपीरियंस है या जो हमारा है इट कैन बी यूज़ फॉर मोर देन 50 और 60 पीपल्स एज वेल एज, वो रूम साइज़ पे और वाइट बोर्ड के साइज़ पे डिपेंड करता है। नंबर टू, हैंड रिटन मटेरियल मे बी डिफिकल्ट टू रीड, और हैंड रिटन मटेरियल जो है डेफिनेटली इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू रीड। देखें व्हेन यू आर यूजिंग वाइट बोर्ड spontaneously you are keep on writing information from one corner of the whiteboard to the last to the other corner of the whiteboard, तो बाद में फिर वो ऑडियंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है सम टाइम कि ये पहली क्या थी इन्फॉर्मेशन, दूसरी क्या थी, अगर आपने इन एन अरेंज वे में नहीं लिखा तो, ठीक है, लाइक दैट। तो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट, दैट इज़ द 7th visual aid media, that is handout. It is very important. Actually handout, it is a modern day techniques for presentation and what presenter is doing, no doubt presenter will provide us information in the form of presentation, but before starting presentation sometimes presenters what they are doing, they are providing us handouts to read before presentation, few minutes before presentation, and sometime one day before presentation. So the idea of the audience regarding the topic to be discussed can be made strong, ताकि आप उसको ऑलरेडी पढ़ के आएँ, पॉइंट्स को पढ़ के आएँ, अपने क्वेश्चंस बना के आएँ, तो आप अच्छे तरीके से फिर अपना इंटरेस्ट डेवलप करके प्रेजेंटेशन में से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हैंड आउट हम उस मटेरियल को कहते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड होता है। देखिए इन प्रेजेंटेशन यू विल प्रोवाइड मैक्सिमम डिटेल्स, बट इन द फॉर्म ऑफ हैंड आउट्स यू कैन प्रोवाइड जस्ट मेन पॉइंट्स, सो इट शुड बी क्लियर टू द ऑडियंस फ्रॉम विच पॉइंट यू विल मूव एंड वेयर यू विल एंड, ताकि आप बता सकें कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करना, ये चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है, ताकि ऑडियंस को बिफोर प्रेजेंटेशन उनको एक आइडिया हो जाए कि व्हाट आइडियाज़ विच टाइप ऑफ टॉपिक्स आर गोइंग टू बी डिस्कस बाय द प्रेजेंटर। एंड इन ईजी वर्ड्स वी कैन से कि हैंड आउट्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ, हैंड आउट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन, उसी की रिफ्लेक्शन होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, नई भी ऐड हो सकती है लेकिन मोस्टली जो प्रेजेंट करना था वही उसमें ऐड किया जाता है। Handouts are a reflection of your presentation and should be well designed, लेकिन ये कि इसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में इसको डिज़ाइन करना चाहिए। Many presentation software programs provide a format for handouts, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो हैंडआउट्स के लिए फॉर्मेट डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन अडॉप्ट एनी फॉर्मेट, इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका बिल्कुल एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। देखें फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड जुमा प्रेयर इन रिलीजियस सेरेमनीज, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो खुतबा वहाँ पे दिया जा रहा होता है उसकी रिटन फॉर्म भी आपको कॉपी दे दी जाती है। डिफरेंट मसाजिद में मास्क में होता है, लाहौर में आई हैव ऑब्जर्व्ड वंस अपॉन अ टाइम, तो जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक व्हेन आई वाज देयर, तो वो प्रोवाइड करते थे, उससे आइडिया होता था अच्छा जी ये पॉइंट, फिर रेफरेंसिंग हर चीज़, सारे प्रूफ एविडेंसेस वहाँ पे मेंशन होते थे, ठीक है। तो नंबर 2, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल थ्रू हैंड आउट्स, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं जो आपने प्रेजेंटेशन में नहीं दी, मिस कर दी या लाइक दैट, या नहीं डिस्कस करना चाहते। इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस एज वेल एज द नॉइस फ्रॉम द पेज टर्निंग इज़ डिस्ट्रैक्टिंग। देखिए सबके पास जब पेजेस होंगे ऑडियंस में हैंड आउट्स के फॉर्म में, तो definitely they have to turn over the pages and this thing will create a distraction, sound will make a distraction, it can disturb others as well as, तो आपको important information that are being discussed there you can miss it easily। तो number 2,
पुअरली डिज़ाइंड हैंड आउट्स रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन योर प्रेजेंटेज। अगर आपने हैंड आउट्स को पुअरली डिज़ाइन किया हुआ, अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन फॉर्मेट में नहीं बनाया, नहीं प्रिंट लिया कंपोज करके, तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव नॉन वर्बल इंप्रेशन ऑन योर ऑडियंस, तो उनका इंटरेस्ट भी इससे लूज़ हो सकता है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन व्यू एलेट्स मीडिया स्टूडेंट्स। इसको बच्चों आप देख ले तवज्जो के साथ। आपका कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लें, या जैसे आपको सूटेबल लगे आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। बेस्ट ऑफ लक।